Hello everyone. So today we will do thermodynamic derivation of relation between molecular mass and elevation in boiling point. So let us consider a solution. It has a non-volatile solute in it. So solution जिसमें कि non-volatile solute है, non-volatile solute will not evaporate. So solution will have only vapors of solvent because solute is non-volatile. So अगर हमने solution vapor equilibrium लिखना हो, we can write solution is in equilibrium with vapor state. तो Clausius-Clapeyron equation अगर हम इसके लिए लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? Clausius-Clapeyron equation, it tells you about the relation between vapor pressure at different temperatures. So Clausius-Clapeyron equation can be written for the above equilibrium as ln of P2 over ln of P1 is equal to delta HV. This is the latent heat of vaporization divided by R. Bracket में 1 upon T1 minus 1 upon T2, where P1 is the vapor pressure at temperature T1 and P2 is the vapor pressure at temperature T2. तो ये हमने जो ग्राफ बनाया था for elevation in boiling point of solvent and solution, तो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये सोल्यूशन का. सोल्यूशन के कर्व में हम कोई पॉइंट z कंसीडर करें तो z में z के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर इज T0 एंड T0 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम वेपर प्रेशर देखें तो PS होगा. और वैसे ही कोई और पॉइंट पे देखें, y पे देखें तो y पे वेपर प्रेशर क्या है P0 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज TS. सो at point y temperature is Ts and vapor pressure is P0, and at point z temperature is T0 and vapor pressure is Ps. So putting these values in above equation, तो हम we can write ln of P0 over Ps is equal to delta HV over R 1 upon T1 की जगह लिखा जाएगा T0, that is the vapor pressure temperature of the solvent, and T2 is the vapor pressure of the solution जब हमने उसमें non volatile solute ऐड कर दिया. सो ln of P0 over Ps is equal to delta HV upon R. इसका हम ले लेंगे LCM T0 TS माइनस T0. तो यहाँ पे इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया Ts minus T0, that gives you the difference in boiling point. Ts minus T0, this difference is called as elevation in boiling point. So for dilute solution boiling point of the solvent is equal to boiling point of the solution, क्योंकि dilute solution है, solute हमारा non volatile है, उसकी concentration भी कम है और वो vapor phase में भी नहीं जा रहा. So T0 is equal to Ts. तो T0 और Ts equal है. इसको इस equation में अगर हम substitute करेंगे तो Ts की जगह हम T0 लिख सकते हैं. तो T0 into T0 क्या हो जाएगा? T0 square. So equation will become ln P0 over Ps is equal to delta HV over R is equal to delta TB over T0 का square. This is your equation number 3. So we know that Raoult's law क्या कहता है? P0 minus Ps over P0 is equal to x2. तो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग से करके लिख देंगे. P0 over P0 हो जाएगा 1 minus Ps over P0, डिनोमिनेटर को हमने दोनों के साथ अलग कर दिया, इज इक्वल टू x2. तो Ps over P0, x2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 minus x2. 1 minus x2. तो ये है ln of Ps over P0 हमने लिखा है 1 ln of, दोनों तरफ हमने ln लगा दिया. ln of Ps over P0 इज इक्वल टू ln of 1 minus x2. तो यहाँ पे Ps और P0 को हम स्विच करेंगे. P0 को ऊपर लिख देंगे, Ps विल बी रिटन एज डिनोमिनेटर एंड वी विल गेट माइनस ln of 1 minus x2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. सो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज़ वेरी वेरी लो, तो x2 की वैल्यू इज़ मच लेसर देन 1. और 1 माइनस x2 को अगर हम एक्सपैंड करें इनफाइनाइट सीरीज़ कैसे लिखी जाती है? ln of 1 minus x2 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस हाफ ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस 1/3 ऑफ x2 का क्यूब माइनस 1/4 ऑफ x2 का 4 प्लस एंड सो ऑन. अब हमें यहाँ पे पता है क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है, x2 की कंसंट्रेशन इज मच लेसर देन 1. सो x2 स्क्वायर तो और भी ज़्यादा कम होगा, x2 क्यूब और भी ज़्यादा कम होगा, विल बी लेस देन 1. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी विल गेट ln 1 minus x2 इज इक्वल टू माइनस x2. इन सबको हम इग्नोर कर सकते हैं, माइनस को इधर ले आओ, माइनस ln 1 minus x2 इज इक्वल टू x2. सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, वी विल गेट ln of P0 over Ps इज इक्वल टू x2. सो अगर हम 3 और 6 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करेंगे, वी विल गेट x2 इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर R डेल्टा TB ओवर T0 स्क्वायर. तो यहाँ से हम डेल्टा TB को इधर ले आएंगे, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन. सो डेल्टा TB इज इक्वल टू x2 की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया N2 ओवर N1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. N2 किसके इक्वल होता है? वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट. तो यहाँ पे अगर सारी टर्म्स की वैल्यू दी हुई हो तो वी कैन डिराइव द मॉलिकुलर वेट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज लाइक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, Clausius-Clapeyron इक्वेशन एट्सेट्रा.
नाउ हाउ टू डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली, जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बार्कलेज एंड हार्टलेज मेथड किया था, वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग लैंड्सबर्गर मेथड। तो ये लैंड्सबर्गर मेथड का सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। दिस इज लैंड्सबर्गर मेथड। सो लैंड्सबर्गर मेथड में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसको हम ए से बोलेंगे, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें प्योर सॉल्वेंट डालते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क इज कनेक्टेड विद अ ट्यूब। यहाँ पे एक हमने इनर बॉइलिंग ट्यूब, ये पूरी एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसको हम इनर बॉइलिंग ट्यूब का नाम देते हैं। इस इनर बॉइलिंग ट्यूब में हमारे पास एक थर्मोमीटर है टू रीड द टेम्परेचर, एंड इनर बॉइलिंग ट्यूब, ये पूरी की पूरी इनर बॉइलिंग ट्यूब इज कनेक्टेड विद राउंड बॉटम फ्लास्क थ्रू दिस बॉइलिंग ट्यूब, दैट इज बी। उसके बाद हमारे पास इनर बॉइलिंग ट्यूब इज एनक्लोज्ड इन अ हॉट वेपर जैकेट, दैट इज एफ, टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो जिस भी सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का हमने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है उसको हम इनर बॉइलिंग ट्यूब में डालते हैं थ्रू दिस होल। और राउंड बॉटम फ्लास्क में हम सॉल्वेंट को हीट करते हैं ताकि उस सॉल्वेंट के वेपर से ये वाला सॉल्वेंट हीट हो, सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है उस सॉल्वेंट को हम इनर बॉइलिंग ट्यूब डी में डालेंगे सॉल्वेंट को। यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेंगे, उसको हीट करेंगे ताकि उस सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं दे विल पास थ्रू दिस बॉइलिंग ट्यूब बी, और इस सॉल्वेंट पे वेपर्स पास होंगे ताकि वो इस सॉल्वेंट को हीट कर सकें। तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो सॉल्वेंट जो है हीट होगा, इसका जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, इस थर्मोमीटर से हम इसका बॉइलिंग पॉइंट रीड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हम इस होल से नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है इस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। तो सॉल्वेंट में जब हम सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। अब हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सेम हमने जो सॉल्वेंट यहाँ पे लिया हुआ है उसको हीट करेंगे, वहाँ से वेपर्स जो है बॉइलिंग पॉइंट ट्यूब से होते हुए इस सोल्यूशन में आएंगे। सोल्यूशन जो है बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हम इस थर्मोमीटर से रीड कर लेंगे। सो दैट विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, तो उनका डिफरेंस आप निकाल के क्या निकाल सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस डिफरेंस विल गिव यू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज लैंड्सबर्गर मेथड टू डिटरमाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली। सेकेंड मेथड इज कॉटरेल्स मेथड। तो कॉटरेल्स मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक बॉइलिंग ट्यूब होती है जिसमें कि हम सॉल्वेंट डालते हैं, जिसका कि हमने सॉल्वेंट या सोल्यूशन डालते हैं जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो दिस इज बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, सॉल्वेंट डाला है। सॉल्वेंट के ऊपर हम थोड़ी सी पोर्सिलेन चिप्स रख देते हैं सो एज टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वेपर्स। उसके ऊपर हम एक फनल जो है इन्वर्ट करके रखेंगे, और इस फनल की जो ट्यूब है इट शुड बी आउटसाइड द सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब इसमें सॉल्वेंट हमने डाल दिया, इस ट्यूब को हम हीट करना शुरू कर देंगे। जब हीट करेंगे तो सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होगा तो इसके जो वेपर्स हैं वो इसकी ट्यूब से इस थर्मोमीटर पे स्प्रे होंगे। सो यहाँ से हम इसका बॉइलिंग पॉइंट थर्मोमीटर से रीड कर सकते हैं। सो दैट टेम्परेचर विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट में नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट विल गिव यू द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन को आप हीट करोगे तो जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसके वेपर से यू विल कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, यू विल रीड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट भी आ गया, दैट इज T0। आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी आ गया, दैट इज TS। सो देयर डिफरेंस विल गिव यू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution. So this is Cottrell's method. Thank you.